Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. We will start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। Students, our today's lecture is conditions of equilibrium. Unit number 4, 9th class physics. As we have discussed the states of equilibrium and the types of equilibrium in our previous lecture, basically there are two types of equilibrium, that is dynamic and static equilibrium. And there are three states of equilibrium, that is stable, unstable and neutral equilibrium. Now today we will discuss the conditions of equilibrium, and there are two conditions of equilibrium. First condition of equilibrium and the second condition of equilibrium. What are those? First condition and second condition of equilibrium. As we have defined in the definition of the equilibrium, that when the body is at rest or moving with the uniform velocity, it means that the body is in state of equilibrium. हमने कहा था कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही होती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पे भी कंडीशंस में भी वही दो कंडीशंस को हम लेकर साथ चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी एन ऑब्जेक्ट विद फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्सेस मोर देन वन forces are acting on the body but with net force zero, लेकिन उसके ऊपर जो net force है, sum of all the forces जो है, net force का मतलब होता है sum of all the forces, वो body के ऊपर zero है, then we can say that the body is in state of equilibrium, right? Now which type of forces are these? अब basically जो body के वो force लग रही है उनकी उसकी कोई ना कोई dimension होगी, whether it is acting along x-axis or y-axis or z-axis, तो along जिस डायरेक्शन के along भी फोर्स लग रही है उन सब का सम जीरो होना चाहिए. That equation is very very important. Summation f x is equal to 0, summation f y is equal to 0, summation f z is equal to 0. Summation means sum, fx mean forces acting along x-axis, x-axis के along जो फोर्स लग रही है वो भी जीरो है, y-axis के along जो फोर्सेस लग रही है वो भी जीरो है, z एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस लग रही है वो भी क्या है? जीरो है. इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, बॉडी जो है इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए. अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, द ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही है ना, और उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कट आउट करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए नॉर्मल फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, जो कि टेबल लगा रहा है बुक के ऊपर इन द अपर डायरेक्शन. तो बोथ विल कैंसिल ईच अदर एंड द बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्स ही
y एक्सिस के along लगेगी, तो वो जब उसका सम जीरो होगा तो दैट मींस द बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट. Now the net force. What is the net force? As I have told you earlier, that sum of all the forcing acting on the object. Net force का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है. लेट वी हैव अ बॉक्स, ठीक है. जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट्स वेरी गुड कि अगर आप ये इस तरह की एग्जांपल आप देंगे और इसी को एक्सप्लेन कर दें. लेट वी हैव अ बॉक्स एंड वी हैव applied the force on the right hand side. हम right hand side पे एक force लगा रहे हैं, let's suppose 5 Newton, and the opposing force, that the force of friction is applied on the is produced in the left hand side. Left hand side पे आपके पास एक frictional force produce हो रही है, and that is also the 5 Newton. 5 Newton is the applied force and 5 Newton is the frictional force, and they will cancel each other. यानी opposing forces हैं तो एक 5 Newton हो जाएगी, एक -5 हो जाएगी, तो means along x axis sum of the forces is 0. 5 minus 5 is equal to 0. Now the force of gravity or the weight of the box is acting in the downward direction. Let's suppose it is 2 Newton, and the reaction of the table or the reaction of the object on which the box is placed is acting in the upper direction. That is the normal force, right? And it is acting in the upper direction. It will also cancel the effect of the weight or the gravity, and the forces acting along y-axis is also 0. तो इट मीन्स कि आपके पास बॉडी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट. So this is all about the net forces, right? Now look at an other example. Okay, if you are asked that how this picture or how the box in this picture satisfy the first condition of equilibrium, so you can write that the weight of the body is acting in the downward direction and the normal or the reaction force is acting in the upper direction, so the body satisfy the फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. जब बॉडी के ऊपर तमाम की तमाम फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं और वो बॉडी रेस्ट पे है, मोस्टली फर्स्ट कंडीशन हम कहते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है उस वक्त उनके ऊपर ओवरऑल फोर्स हो रही होती है वो जीरो हो रही होती है, हम कहते हैं कि वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. Now the second condition for equilibrium. The sum of the algebraic sum of all the torques acting on the body is 0. वहाँ पे हमने फोर्सेस की बात की थी, अब यहाँ पे टॉर्क की बात करी है कि जब बॉडी रोटेट होना शुरू हो जाती है, रोटेशन शो करती है, तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होती है. और जब आपके पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, जब तमाम टॉर्क्स का सम 0 होता है और बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ बैलेंस होती है, तब हम कहते हैं कि वो सेकेंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क्स, clockwise and anti-clockwise. Clockwise torque are exactly balanced by the counterclockwise. What is meant by counterclockwise? Counterclockwise is an other name of anti-clockwise. So don't be confused with it. Counterclockwise और clockwise torque जब एक दूसरे को exactly balance करेंगे, they will cancel the effect of each other and the body will be in the balanced state. This is known as the second condition of equilibrium. And what is its equation? Summation torque, sum of torque is equal to 0. And sum of torque का मतलब क्या है? All the clockwise torques plus sum of all the counterclockwise torque is equal to 0. तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है. इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम बुक की तरफ मूव करते हैं. ओके, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. दिस इज योर बुक, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. तो देखिए, आप जब इसको स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है. अब देखिए एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लेट वी हैव अ बॉडी एंड नंबर ऑफ फोर्सेस, n नंबर ऑफ फोर्सेस. क्या आपके पास उसके पास n नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी वो बेतहाशा फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही है. लेट्स सपोज F1, F2, F3 एंड सो ऑन टू Fn. अब n कोई भी नंबर हो सकता है. 100 फोर्सेस एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर, 50 कर रही है, 10 कर रही है. अब देखिए, हमने जब फर्स्ट कंडीशन को कहा, हमने कहा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उन सबका सम 0 होना चाहिए. F1 प्लस F2 प्लस F3
प्लस सो ऑन टू एफ एन, इन तमाम का सम जब इक्वल टू 0 होगा देन द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्विलिब्रियम की। तो हम इसको ओवरऑल कर सकते हैं समेशन एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन जो होता है ग्रीक लेटर है, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा मतलब लेटर बेसिकली सिग्मा है और यूज फॉर समेशन, हम इसको समेशन के लिए यूज करते हैं। समेशन का मतलब सम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ टॉर्क, सम ऑफ वेट्स, जो भी आपने करना है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी भी फोर्सेस हम एक्ट कर रही हैं बॉडी के ऊपर, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा, वो तमाम जीरो होनी चाहिए। तो अगर हम कह रहे हैं कि बॉडी के ऊपर जो एक्स एक्सिस पे है उसके ऊपर भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वाई एक्सिस के अलावा भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो हम लिखेंगे F1x, F2x प्लस F3x प्लस Fnx, यानी जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फर्स्ट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस प्लस सेकंड फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस प्लस, तो उन तमाम का सम 0 होना चाहिए। इसी तरह जितनी भी फोर्सेस हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, अगर वो y एक्सिस के अलोंग भी एक्ट करिए उनका सम भी 0 होना चाहिए। तो हम इसको सम अप करके हम इसको एक सिंपल वर्ड में लिख देंगे समेशन एफ एक्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस is 0. Summation Fy is equal to 0. Sum of all the forces acting on the body along y axis is also 0. ठीक है, तो देखिए इसकी एग्जांपल, द बुक lying on the table, the picture hanging on the wall, ये तमाम चीजें रेस्ट पे हैं और ये सेटिस्फाई कर रही हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। लेकिन अगर आपसे कहा जाए द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन एंड सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो हमने जितने भी एग्जांपल पढ़ी वो रेस्ट की पढ़ी कि एक बॉडी रेस्ट पे है, सॉरी मोशन में है, मूव कर रही है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसकी एग्जांपल होगी अ पैराट्रूपर। ठीक है, दैट आई हैव टोल्ड अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर कि पैराट्रूपर या पैराशूट किस तरह से कंडीशन करता है, बिकॉज इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर है वो अपोज कर रही है इन दी अपर डायरेक्शन। दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। देखो कंडीशन तो ये है ना कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। ठीक है, तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी एंड इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिस यूनिफॉर्म मोशन के साथ बॉडी मूव कर रही है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो इट मींस कि इस स्टेट में बॉडी अगर मोशन में भी है, मूव भी कर रही है, बट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट कैंसल आउट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तब भी बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Second condition of equilibrium, as I have told you in the definition of the second condition of equilibrium, that sum of all the torque acting on the body is 0. अब यहाँ पे आपके पास देखें, लेट्स सपोज द फिगर नंबर 1, ठीक है, 4.30, two forces are acting on the body F1 and F2 and they are acting along the same line. सेम लाइन का मतलब ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। F1 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है और F2 जो है वो लेफ्ट साइड पे, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, बट इन द सेकेंड फिगर F1 and F2 are acting in the opposite direction but not along the same line. अब ये सेम लाइन में नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी दे सकती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास ये रॉड है, ठीक है, आपने F1 एक्ट किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब F1 की वजह से बॉडी रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अब ये सिंगल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, तो सिंगल फोर्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक और फोर्स की जरूरत है। अब यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है। अब बॉडी जब रोटेट कर रही है, लेट्स सपोज इसका सेंट्रल पॉइंट इसके अराउंड ये रोटेट करती है। अब एक नई कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन की जरूरत है, दैट इज सेकंड कंडीशन। यानी जब बॉडी रोटेट होना शुरू हो जाती है, सो वी नीड एन अदर कंडीशन, दैट इज, और यहाँ पे F2 अगर अपर डायरेक्शन में कर रही है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें
अब ये तो रोटेशन स्टार्ट होगी, लेकिन अगर मैं इस तरह से कहूँ, आपको यूँ एक्सप्लेन करूँ कि दोनों आपके पास जो है वो इन द सेम डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं। F1 की वजह से बॉडी इस साइड पे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, F2 की वजह से बॉडी मूव करेगी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बॉडी जो है वो सेटिस्फाई करेगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ये देखिए, summation torque is equal to 0. So that is the second condition of equilibrium. There is another example that seesaw, जो कि already हम पहले भी discuss कर चुके हैं. Let two children are playing on the seesaw. W2 is the weight of the girl and W1 is weight of the boy. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए W2 की वजह से दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो W2 होगा, W2 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। लेकिन आपके पास W1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इट इज इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में होगी एंटी क्लॉकवाइज। और ये दोनों एक दूसरे को जब तक कैंसिल नहीं करेंगे ये बैलेंस नहीं हो सकते, और उस वक्त तक बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। बस कीप इट इन योर माइंड दैट क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल and they will cancel each other, so the body is in state of equilibrium. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं the body is moving with the uniform angular motion. बॉडी अगर रोटेट कर भी रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर रोटेट करती रहे तब हम कहते हैं the body is in state of second condition of equilibrium. ठीक है, वो second condition of equilibrium को satisfy कर रही है. So this is our lecture of today. Now applications of this second condition. First condition की तो application बहुत easily आप लोगों को समझ भी आ जाती है. Second condition की application seesaw हमने पढ़ लिया. Pedal of the boat. अब देखिए pedal of the boat भी, उसको भी हम rotate कर रहे होते हैं. अब उसको smoothly boat को move करवाने के लिए हमें उसकी torque को control करना है. Sport in a large cranes construction. अब देखिए आपको crane भी नजर आ रही है. अब देखिए crane, अब ये जो इसका पॉइंट जहाँ पे लेजर लाइट आपको नजर आ रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अगर हम यहाँ पे वेट बहुत ज्यादा कर दें तो ये अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देगा. तो इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने टॉर्क को बैलेंस कर रहे हैं, यानी इस वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेट है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. Now this is all about our today's lecture. Now if you have any question you can ask me. Okay, thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz to all of you.